about different types of pulmonary volumes, right? If you recall, what kind of pulmonary volumes were discussed? TV, that is tidal volume, then IRV, that is inspiratory reserve volume, ERV, that is expiratory reserve volume, and RV, that is residual volume. The overall definition of pulmonary volumes was an amount of air that can be inhaled, held or exhaled by lungs under different conditions is called as pulmonary volume. Like normal amount of air which is inspired or expired during breathing is TB. Forceful inspiration is IRV. Forcefully expired air is ERV. And the amount of air that still remains in respiratory tract even after most forceful expiration is RV. Right? Now, the next thing in a sequence that is to be discussed is pulmonary or lung capacities. It is okay. Pulmonary capacity by definition is nothing but combination of two or more volumes. Is it okay? जो pulmonary capacity है वो क्या है? दो या दो से ज्यादा pulmonary volumes का combination, right? और जैसे हमने इन चार तरह के pulmonary volumes को पढ़ा, वैसे ही हमारे पास अलग अलग तरह की pulmonary capacities है और उनका बेसिक फंडा है कि हर तरह की pulmonary capacity दो या दो से ज्यादा volumes का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि पहली पल्मोनरी कैपेसिटी अगर हम देखें तो उसका नाम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं IC। IC स्टैंड्स फॉर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, इट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ pulmonary capacity in our discussion. As we said कि pulmonary capacity of each type is a combination of two or more than two pulmonary volumes. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो by definition inspiratory capacity का definition बनता है an amount of air that can be maximally inspired by lungs after normal expiration। ध्यान से फिर से एक बार इसको पढ़ो, क्या लिखा है? Amount of air that can be maximally inspired by lungs after normal expiration। नॉर्मली हम सांस बाहर निकालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितनी एयर हम हमारे अंदर ले सकते हैं या इंस्पायर कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उससे ज़्यादा इंस्पायरेशन हम नहीं कर सकते। तो लॉजिक लगाओ कि नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया, इसका मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन हो सकता है, तो टीवी, राइट? और नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी हो सकता है, मतलब IRV, ठीक है ना? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब टीवी, मतलब अबाउट 500 ml ऑफ एयर, और उसके बाद अगर हम चाहे तो फोर्सफुली भी एयर अंदर ले सकते हैं, दैट इज IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि है लगभग 2500 ml।
तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब टीवी प्लस आईआरवी बन जाता है आईसी, ठीक है ना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज देयरफॉर एडिशन ऑफ विच टू पल्मोनरी वॉल्यूम्स, tidal volume plus inspiratory reserve volume, because by definition it is an amount of air that can be maximally inspired after normal expiration. तो maximum कितनी amount of air हम inspire कर सकते हैं? tidal volume plus forceful inspiration, that is IRV. That's why by formula inspiratory capacity is equal to TV plus IRV, that is about 3000 ml of air is a inspiratory capacity. Okay, now have a look at the given thing in a slide presentation. The same thing you will see. What is written for inspiratory capacity? The same thing. Is it okay? Inspiratory capacity is a total volume of air that can be inhaled after normal expiration, right? Hence it includes tidal volume and inspiratory reserve volume, that is IC is equal to tidal volume plus IRV, which is around 3000 to 3500 ml in volume. ये IC था। अब इजी बनाने के लिए थोड़ा सा नेक्स्ट जो कैपेसिटी है उसको बहुत इजी बनाने के लिए इसका उल्टा सोचो, इसके उल्टा सोचो। यहाँ पे हमने क्या बोला? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड। इनहेल्ड की जगह क्या आ जाएगा इधर? एक्सपायर्ड और एक्सेल्ड। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन की जगह आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है ना। तो इसमें भी फिर से कौन आएगा? टाइडल वॉल्यूम, लेकिन आईआरवी की जगह ईआरवी। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम कि नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद, मतलब नॉर्मली ब्रीदिंग करने के बाद, सांस अंदर लेने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर या कितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमने नॉर्मली सांस अंदर ली तो नॉर्मली सांस बाहर निकालेंगे, मतलब टाइडल वॉल्यूम 500 ml, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं मतलब ईआरवी, जिसकी वैल्यू हमने इससे पहले पढ़ी है कि वो थी लगभग 1500 ml। तो फिर ईसी या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाती है 1500 से 2000 ml, ठीक। मतलब ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं अगर हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एयर को बाहर निकालना चाहे। तो दोनों को एक बार कंपेयर करो तो तुमको समझ में आएगा। पहली केस में क्या लिखा है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, ठीक है ना, सॉरी, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर मैक्सिमली बाहर निकाली जा सकती है वो है वंस अगेन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर ली जा सकती है दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा से ज्यादा बॉडी के बाहर निकाली जा सकती है दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें दो वॉल्यूम्स का, कौन से दो वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन है? टीवी प्लस आईआरवी इज आईसी, सिमिलरली टीवी प्लस ईआरवी इज ईसी, दैट इज व्हाट आईसी एंड ईसी मींस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नंबर्स या वैल्यू फिर से इंपॉर्टेंट, आईसी की है लगभग 3000 टू 3500 ml और ईसी के लिए 1500 टू 2000 ml। The next capacity in a sequence is functional residual capacity,
अभी तक हमने दो कैपेसिटीज पे फोकस किया, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. नाउ द नेक्स्ट वन इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. याद करो हमने रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था. क्या था रेसिडुअल वॉल्यूम? रेसिडुअल वॉल्यूम था कि अमाउंट ऑफ एयर. ओके, क्या था रेसिडुअल वॉल्यूम? इट इज एन रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था? अमाउंट ऑफ एयर दैट remains in lungs after most forceful expiration. राइट, ये था डेफिनेशन रेसिडुअल वॉल्यूम का. अभी हम बात कर रहे हैं FRC मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की. राइट, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट FRC, that is functional residual capacity, and we have already discussed residual volume. यहाँ पे हमको समझ में आता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में फिर भी प्रेजेंट रहती है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है. लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या हम जनरली ये चीज करते हैं? क्या हम हमेशा फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं? तो जवाब है नहीं. हम ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर ही बॉडी से बाहर निकालते हैं. ठीक, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के समय या नॉर्मल एक्सपायरेशन अगर हम करें तो लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कितनी एयर बची है? आरवी तो है ही, क्योंकि वो तो कभी नहीं निकलने वाली, बिकॉज इट इज एन अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स इवन आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन. लेकिन अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना करके नॉर्मल एक्सपायरेशन करें तो आरवी के साथ साथ लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और कौन बचेगा? ERV मतलब अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड. नॉर्मल एक्सपायरेशन अगर करेंगे तो ये नहीं निकलेगी. तो लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंक्शनली एक्चुअली कितनी अमाउंट ऑफ एयर ज्यादातर समय पे बची हुई रहेगी? या FRC का इक्वेशन क्या होगा? RV प्लस ERV, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज एन अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. फोर्सफुल नहीं, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में बची हुई रहती है उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. लॉजिक लगाओ तो आरवी तो रहेगा ही, प्लस नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ है, फोर्सफुल नहीं हुआ, तो ERV भी रहेगा. दैट्स व्हाई FRC इज इक्वल टू RV प्लस ERV. जिसको टोटल करो तो तुमको RV की वैल्यू पता है, ERV की भी पता है, टोटल से निकलेगी FRC की वैल्यू, मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आप स्लाइड में क्लियरली देख सकते हो कि क्या लिखा है. फर्स्ट वो पढ़ो कि when a person breathes normally, the amount of breathes normally, not forcefully, the amount which remains in the lungs after normal expiration is called as functional residual capacity. That's why it is RV plus ERV, that is around 1500 plus 1000, that is about 2500 ml in quantity. That's what functional residual capacity is. Is it okay? So this is the third type of pulmonary capacity in our discussion after IC and EC, that is inspiratory capacity and expiratory capacity. It is functional residual capacity. Again you need to remember the number or value. The fourth one here is
you can see the fourth type of capacity, that is vital capacity. First you read the definition, it will be very clear. What is written? It is an amount of air that a person can inhale and exhale. And or nahi. It is an amount of air that a person can inhale and exhale with maximum effort. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा के कोई पर्सन, एक नॉर्मल अडल्ट हेल्दी पर्सन, जितनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकता है और बाहर निकाल सकता है, दैट इज इनहेल एंड एक्सहेल, इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी. और क्योंकि ये इनहेल एंड एक्सहेल बोथ है, ठीक है ना, मतलब अंदर ले सकता है या बाहर निकाल सकता है, तो इसमें तीनों वॉल्यूम्स आएंगे. दैट इज टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर किया जाने वाला वॉल्यूम है, आईआरवी मतलब जो फोर्सफुली इंस्पायर किया जा सकता है वो वॉल्यूम है, और ईआरवी मतलब जो फोर्सफुली निकाला जा सकता है बाहर वो वॉल्यूम है. राइट? मतलब एक बात सोचो कि अगर कोई पर्सन मोस्ट फोर्सफुली सांस अंदर लेना चाहे या एक्सहेल एक्सपायर करना चाहे, तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा से ज्यादा इनहेल या एक्सहेल हो सकती है, वो है VC, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर आएगा. तीनों को हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आएगा लगभग 500, 2500 एंड अराउंड 1000, तो ये आ जाएगा लगभग 3500 टू 4500. ये एक एवरेज वैल्यूज है जो तुमको याद रखनी है. पर्सन टू पर्सन ये डेफिनेटली वैरी करेंगी, बट वाइटल कैपेसिटी का जहां तक सवाल है, इट्स अ सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, द लास्ट टाइप ऑफ capacity or pulmonary capacity in our discussion is total lung capacity. मतलब नाम से समझ में आता है, total amount of air that can be present in lungs and respiratory tract after maximum inspiration. Most forceful inspiration के बाद lungs के अंदर और पूरी respiratory tract में मिलके जितनी टोटल अमाउंट ऑफ एयर रह सकती है या रहती है, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज TLC, विच इज सम टोटल ऑफ VC एंड RV. अब VC क्या था याद करो, VC था टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल एंड एक्सहेल. RV क्या है, amount of air that still remains in the lungs even after most forceful expiration. मतलब इसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी हालत में लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इतना वॉल्यूम ऑफ एयर तो रहना ही है, राइट? बट जो अंदर या बाहर निकाला जा सकता है, मतलब अंदर लिया जा सकता है या बाहर निकाला जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो है VC. तो फिर लंग्स में एक साथ टोटल फुल कंडीशन में कितनी एयर रह सकती है, VC, और ये तो रहनी ही है, दैट इज RV. दैट्स व्हाई टोटल लंग कैपेसिटी हुई VC प्लस RV, दैट इज, अब इसको अगर हम 4500 ml कंसीडर करें तो ये 1500 ml ऑलरेडी थी. तो एक अडल्ट हेल्दी पर्सन या ह्यूमन में अबाउट टोटल लंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 5000 से 6000 ml ऑफ एयर रह सकती है या वहां पे अकोमोडेट हो सकती है, जिसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी. आपको यहाँ पे एक एडिशनल बात हम बताए तो ये याद रखना है कि हर वॉल्यूम का न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, हर कैपेसिटी का न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, और कौन सी पल्मोनरी कैपेसिटी, कौन से पल्मोनरी वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन है. जैसे कि आप पहले से देखो,
यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। और लास्ट में टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। और वो क्यों है उसका डिस्कशन ऑलरेडी हर चीज में लिखा हुआ है और हमने अभी अभी डिस्कस भी किया है। इन सब को जब भी पढ़े एक साथ पढ़े तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। लास्ट में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही चीज फिर से रेस्पिरेशन में अगर आपको याद हो तो हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट, जिसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड का रेशियो। प्लांट्स में हम देख चुके हैं कि कितना CO2 इवॉल्व होता है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, उसके रेशियो को हम रेस्पिरेटरी क्वोशंट कहते हैं, जो हर एक न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग है। जैसे याद करो तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू 1 होती है, फैटी एसिड्स या प्रोटीन्स के लिए वो 1 से कम होती है और ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए वो 1 से ज्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे ये मेंशन सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल आता है। Ganong's respirometer is an instrument or device that is used to measure the value of respiratory quotient. It's a direct question that you should remember. Ganong's respirometer is used for measuring respiratory quotient. Okay. Now the next is the last thing for this topic, and it is nothing but a diagrammatic representation of all the volumes that we discussed till now and all the capacities. Have a proper look at this diagram. What you can see here. देखो, अगर इस एरिया को हम वॉल्यूम कंसिडर करें, इस पूरे एरिया को हम वॉल्यूम कंसिडर करें, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी है, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एयर लंग में आ सकती है। एज यू कैन सी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक। अब इतनी जगह को देखो, ये है RV एज यू कैन सी, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब ये वो एयर है जो लंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कभी बाहर ही नहीं निकलती, ठीक, वो हमेशा रहती है चाहे कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया जाए, करेक्ट। दिस इज RV, ओके। तो अगर ये RV है तो ये सब मिला के VC होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल लंग कैपेसिटी है। तो आप देखो यहाँ दिखता है तुमको कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, VC वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा था वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। इज इट ओके। अब वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या था, TV था, IRV था और ERV था। तो देखो ये क्या है, ERV दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन से बाहर निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना करें तो ये अमाउंट ऑफ एयर बाहर नहीं निकलेगी, राइट। और नॉर्मल ब्रीथिंग से हम कितनी अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकालते हैं, ये रही टाइडल वॉल्यूम, मतलब ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं 500 ml, और ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम बाहर निकाल सकते हैं अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें। इसीलिए हमने एक टर्म पढ़ी थी FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी पढ़ी थी ना। उसमें क्या बोला था कि नॉर्मल ब्रीदिंग अगर करें और फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना करें तो जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट रहती है वो FRC है, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इसीलिए हमने FRC को कहा था RV प्लस
ERV as you can see, right? Now IC के लिए हमने कहा था कि inspiratory capacity is the amount of air that can be forcefully inspired after normal expiration, right? मतलब tidal volume plus IRV inspiratory reserve volume, ये forcefully inspire की जा सकती है वो air है, right? और ये forcefully expire की जा सकती है वो air है, right? और ये है वो अमाउंट ऑफ एयर जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग के समय अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं। तो ये अगर आपने पूरा डिस्कशन सही से पढ़ा है और सही से समझा है तो आप इस डायग्राम में वो सारी चीजें देख सकते हो जो अभी तक हमने वॉल्यूम्स और पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटी के हेडिंग के अंदर पढ़ी है। यू कैन सी ऑल द थिंग्स, IRV, TV, ERV, RV, VC, TLC, right? So this is the diagram for pulmonary volumes and pulmonary capacities. I'm clearing it. Have a proper look at this diagram. And this is the thing that we needed to discuss about pulmonary volumes and pulmonary capacities as a whole. It is a very important thing that you should properly understand.